साक्षी जी। हेलो, हेलो। आई एम ऑडिबल। हाँ या मेरी आवाज आ रही है? या साक्षी जी, नाउ नाउ वी कैन स्टार्ट। है ना, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं ओके। हम लोग। हाँ। हाँ हाँ, शुरू किया जाए। Good evening, everyone. I, Sakshi, welcome you all to this lecture series on the first evening of Fagun month. Me, Sakshi Singh, a research scholar at Faculty of Education, PHU, as a co-convener, along with Vikas ji, research scholar from Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, as a coordinator, and Ganeshi Lalji from JNU as a convener, and Devendra Yadavji from HNB Gadwal University, Uttarakhand as a co-convener, and Ankita Shuklaji from Central University of Kerala as organizing secretary. Welcome you all on behalf of Indian Research Scholars Association. Today's lecture topic is the essential qualities of a research scholar. And our today's speaker is Professor Janak Singh Meena sir from Central University of Gujarat. And I believe today's topic is a much needed for research scholars because education is a key to change the society in a positive manner, and researchers plays a vital role to present a current face of society. So relevant, इसको लगाएंगे। authentic, and valuable researches depend on हम्म। attitude of researchers. So it is a become very important for all research scholars to know the essential qualities of researchers. So now I'm inviting Vikas ji for the लगाइए। welcome speech to our for our speakers, sir. Over to you, Vikas ji. ओके। ओके, थैंक यू सो मच। 1 मिनट। थैंक यू सो मच। साक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी विकास जी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है विकास जी। ओके, 1 मिनट। एक्चुअली टुडे आई एम आउट ऑफ द स्टेशन, सो मैं अभी यहाँ पर एक जगह बैठ करके इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to welcome and I would like to thanks to our today's respected speaker, Professor Janak Kumar Meena sir, and sir has accepted our invitation, and sir has also given us a very significant and vital theme, which is very relevant for the research scholars. Essential what is the it means the essential qualities of a researcher. Today we are going to discuss in the very specific and the very particular topic. So I welcome again to our today's our speaker, to Professor Janak Singh Meena sir, and I would like to welcome the founder executive committee members of the Ashwini Kumar, Ganeshi Lal, today's convener, co-convener Sakshi Singh, Ankita Shukla, and I would like to welcome on the behalf of me and on the behalf of the Indian Research Scholars Association to all participants who had taken their valuable time and join this lecture. So I will not take much and more time. So today I want to share the one one specific quality of the Janak Meena sir. When I have talked to send the invitation to Meena sir, so sir has immediately replied me that, and sir has ensured that I will be sure I will be delivered my lecture. सो मृदुला मैडम के बाद में मीना सर दूसरे हमारे एसोसिएशन के स्पीकर हैं, जिन्होंने कि मेल पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया और तुरंत उन्होंने बात किया कि नहीं, मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगा। ऐसे ही एक मृदुला सर का हमने एक लेक्चर सुना था पिछले मंथ में, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ
और बहुत ही आदर के साथ मीना सर का स्वागत करता हूं। और आगे की फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू इनवाइट टू साक्षी सिंह। सो ओवर टू यू साक्षी। Thank you, Vikas ji. Now I'm inviting Ashwani ji for the brief intro of the. Ashwani ji, Thank over to you. you. Thank you very much, Sakshi. First of all, a most very good and warm welcome also. So my name is Ashwini Kumar. I'm also PhD research scholar in economics department, IGNTU itself. सर के अगर परिचय की बात करें तो इट्स इट्स हमारा बहुत ज़्यादा मतलब हमारा सौभाग्य है कि सर का मैं परिचय दे रहा हूँ, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सर का परिचय इतना बड़ा है कि हम शायद हमको ही आधा घंटा हेड है डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सर का एमए, पीएचडी एंड पीडीएफ राजस्थान यूनिवर्सिटी से है। 2018 में सर को डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई है कि सर हमारे लिए सर ये सपना है और मैं चाहूँगा कि आप फ्यूचर में हमारे लिए ऐसे इंस्पिरेशन बने रहें। सर ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा बुक लिख चुके हैं और 100 से ज़्यादा सर के रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं। सर नेपसी विच इज़ नाउ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी हैं। सर को 2019 में रिसर्च श्री सम्मान से नवाजा जा चुका है कि तो ये एक इनफ मुझे लगता है कि किसी के लिए इंस्पिरेशन है सर का परिचय। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं साक्षी जी से कहूँगा कि सर को इनवाइट करें और हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक वंचित ना रखते हुए सर का व्याख्यान की नहीं, शुरुआत करवाई बिल्कुल जाए। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने सही कहा। मैंने भी सर का जब सीवी देखा और मैं इन्विटेशन सेंड कर रहा था, तो एक्चुअली मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। और सर आप देख सकते हैं कि मैं रोड पर एक सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे आप 40 मिनट के लिए अपना कमरा दे दीजिए। तो मैं जस्ट उसी के रूम से जुड़ा हुआ हूँ और लाइव हूँ। मैंने कहा सर को पूरा सुनना है हमें। सो थैंक यू, ओवर टू यू साक्षी। Now, sir, this lecture series is we all waiting for your lecture, sir. Now, over to you, sir. थैंक यू साक्षी। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन बना करके जो एकेडमिक मैं देख रहा हूं एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और पूरे देश से इसमें आपने रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स को भी जोड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और इस तरह के लेक्चर आप भैया लोग मेरा एक आयोजित करते बैग हैं ले तो आइए, वो और भी बहुत ही अहम बात है उधर वो कि सामने बिना कुर्सी, हाँ, काला वाला संसाधनों और वो के भी दोनों लाल आप वाले वो के। एकेडमिक एक्टिविटी कर पा रहे हैं जो संस्थानों की जो जिम्मेदारी है शायद वो संस्थान नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटीज हो, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो। तो हम सबको इस तरह की जो इनिशिएटिव लिए हैं आपने, तो मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ इसकी। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर मिस्टर विकास कुमार जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंस में हैं और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक से हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के नेतृत्व में ये तैयार किया है। कन्वीनर के रूप में मिस्टर गणेशी लाल जो जेएनयू से हैं, को कन्वीनर मिस साक्षी सिंह जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएचयू से हैं, दूसरे को कन्वीनर मिस्टर देवेंद्र यादव जो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अंकिता शुक्ला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, और अश्विनी जी अभी यहाँ परिचय दे रहे थे। तो आप सब लोगों का, साथ ही आपकी जितनी भी टीम है, आप लोगों के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो शायद बहुत कम लोग उस तरह का सोचते हैं। तो आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सब प्रशंसा के
पात्र हैं। दूसरा, अभी अश्विनी जी जब बात कर रहे थे नेप्सी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये बहुत कम इस रिसर्च स्कॉलर्स को जानकारी है इसकी, तो लेक्चर से पहले मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। नेपासी है ये, NEPASI, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, और ये जो IIPA है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये IIPA के अंदर ही ये 1989 में इसकी नींव रखी गई थी, और 93 से इसको एक ऑफिशियल इसका फॉर्मेशन किया गया। और उस संस्थान में जहां पूरे देश से पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के भी फैकल्टी मेंबर्स, लगभग 1000 फैकल्टी मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं। और ये बता दूं कि लाइट ऑन, ये किसी तरह का रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हुए भी दूसरे देशों में भी ये पॉपुलर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज तो सब एक मैं ऐसा व्यक्ति रहा जो बिना किसी पद के इस पद तक पहुंच पाया। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को इस तरह के जो एकेडमिक एसोसिएशन हैं उससे जुड़ना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह की जो पॉलिटिकली एक्टिविटीज इसमें नहीं होती हैं, ये उससे दूर है, अलग है, उससे हट करके है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो चलो, ये तो थोड़ा सा परिचय रहा। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि जो एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए रिसर्चर, ये क्यों जरूरी है ये टॉपिक। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? तो जब हम रिसर्च को देखते हैं तो री और सर्च में 2 पार्ट में इसको विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद जो हिंदी में करते हैं वो इस तरह से। तो री का मतलब है अगेन एंड अगेन। तो अब जो हो रहा है, जो थ्योरीज बनी है, वो क्या वास्तव में आज के संदर्भ में भी, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी वो उतनी ही वैलिड है? तो उसको हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं, उसको और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब सर्च की बात करते हैं तो टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, हम तथ्यों को कैसे पहचानें, उन तक कैसे पहुंचे। अब फैक्ट्स क्या हैं? हमारी समस्या ये रहती है रिसर्च में। तो फैक्ट्स आर एम्पिरिकली टेस्टेबल ऑब्जर्वेशंस, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभविक हैं, जिनको अवलोकन किया जा सकता है, जिनका परीक्षण किया जा सकता है, वो आपके होंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स आर रिलेटेड विद द रिसर्च प्रॉब्लम। फैक्ट हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़े हुए होते हैं, जो भी हमारी शोध की समस्या है उससे जुड़े होते हैं। अब आते हैं मेथोडोलॉजी, मेथड और लॉजी। मेथड क्या है? रिसर्च टेक्निक्स, हमारी रिसर्च की टेक्निक क्या है, हमारा क्या स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, शेड्यूल है, हम सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वैलिडिटी है उसकी। सोशल साइंसेज में लिमिटेड है टेक्निक्स, तो हम कई बार मिक्स मेथड भी यूज करते हैं। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी सिस्टमेटिकली, यानी साइंस से लॉजिकल एनालिसिस, साइंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे लाएंगे साइंटिफिक तरीके से, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स को कैसे यूज करते हैं। तो ये हमको देखना होता है। दूसरी बात हम इसमें करें कि जब रिसर्च की बात करते हैं तो टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, टू फाइंड आउट द लॉजिकल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। जब हम कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की जब बात आती है तो उसमें हमेशा यही रहता है कि जो शोध प्रविधि है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में उसको कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं। रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉब्लम और ए क्वेश्चन। हमेशा हमारे सामने जो भी रिसर्च की कोई प्रॉब्लम होती है तभी हमारी रिसर्च स्टार्ट होती है। हमारे सामने कोई सवाल होता है, पहले से कोई प्रश्न होता है, तो निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंचते हैं। अब उससे पहले हम ये जान लें कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम वहां जाने से पहले हमको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज ए टर्म रेफरिंग टू डिस्क्रिप्टिव
यानी कि कैसा टर्म है ये कि वो रेफर करता है तो डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी और रिलेशंस, एक दूसरे के बीच के रिलेशंस को वो करता है। कॉन्सेप्ट टू डेवलप स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, यानी कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक हाइपोथेसिस डेवलप करनी होगी। जैसे हम बात करें गवर्नेंस की, बात करें गुड गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, किस तरह से उसको आपको डिफाइन करना होता है, जो भी आपका टॉपिक है। या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि देखिए कि विमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, बहुत सारे पहले रिसर्चर हैं, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, और हम जब रिसर्च करने जा रहे हैं इस रिसर्च के अंतर्गत हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हो सकता है हम एजुकेशन भी देखें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी देखें, इकोनॉमिक स्टेटस भी देखें, सोशल स्टेटस भी देख सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग में उसकी क्या भूमिका है, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क करना होता है आपको, है या यूजीसी है या कोई मिनिस्ट्री है, बहुत सारे आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए वो कहते हैं कि, लेकिन उनका पहले से आइडेंटिफाई होते हैं कि ये सब थीम्स के तहत आप अपना प्रपोजल करें, तो उसमें भी एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इन कॉन्सेप्ट के बीच के जो रिलेशनशिप है वो ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब हमको जो भी कुछ करना होता है वो थ्योरी बिल्डिंग के लिए। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी इज एग्जिस्टिंग नॉलेज मेकिंग जनरलाइजेशन अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको रिसर्च में देखनी होती है। अब आप ये सब देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो आधी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस करते हैं तो उससे पहले हमको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। तो वेरिएबल्स क्या हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेक्स ऑन 2 और मोर वैल्यूज। उसमें उसकी क्या विशेषताएं, 2 या 2 से अधिक उसके उसमें मूल्य नहीं होते हैं। जैसे लैंड है, मान लीजिए, उसके क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकती है, सेमी फर्टाइल हो सकती है, नॉन फर्टाइल हो सकती है। दूसरी बात करें जैसे एज के, यंग हो सकता है, मिडिल एज हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, कास्ट में लो, इंटरमीडिएट और हाई क्लास, एजुकेशन, इलिटरेट, यानी बहुत सारे हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन, लो स्टेटस, मिडिल क्लास और हाई क्लास, इनकम में लोअर मिडिल, बहुत सारे हो सकते हैं ये भी। तो ये क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ये आपको देखना पड़ता है जब भी हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिसर्च में जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमको ये सब चीजें पता हो। तो अब मैं जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर आता हूं कि क्यों जरूरी है कि एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए रिसर्चर, क्या जरूरत पड़ती है हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज की जो रिसर्चर में होनी चाहिए, क्यों हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसर्चर के अंदर वो क्वालिटीज इसलिए होना जरूरी है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हम जो भी रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसकी जो थ्योरी बिल्डिंग करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए। अदरवाइज वो रिसर्च में कहीं ना कहीं ऐसे गैप्स रह जाएंगे कि वो आपका पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हमको एक रिसर्चर को उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए और हमको किस तरह से रिसर्च के दौरान उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, वो आपके सामने हम रखेंगे। तो पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए रिसर्चर में वो है फिजिकल क्वालिटीज एंड पर्सनल क्वालिटीज। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि वही फिजिकल क्वालिटीज की क्या जरूरत है या पर्सनल क्वालिटीज की क्या जरूरत है एक रिसर्चर को। बहुत जरूरी है रिसर्चर के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि वो फिजिकली फिट नहीं है या उसकी जो पर्सनालिटी है वो उस तरह की नहीं है कि वो रिसर्च में जाए और वो अपना, मान लीजिए कि वो उसका माइंड कहीं और काम करता है। रिसर्चर, आप किसी के साथ जाएंगे जहां इंटरव्यू करेंगे या फील्ड में जाएंगे तो वो भी आपको नोट करते हैं, वो भी ऑब्जर्व करते हैं। हम ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज करते हैं, बहुत सारे मिक्स मेथड के साथ चलते हैं, लेकिन वो जो रेस्पोंडेंट है या फील्ड में जहां भी जा रहे हैं वो भी आपको देखते हैं,
वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितने सीरियस हैं। यदि आप उस तरह की पर्सनैलिटी, यानी आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर होना चाहिए। अरे जैसे भी आप एकदम क्लीन, बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े पहन के और अच्छे से पेश आए, उसका मतलब ये होता है। और जब भी बात करें तो उनके साथ मुस्कुरा के बात करें, तो जो उनसे लेना चाहते हैं उससे ज्यादा आप ले पाएंगे। अदरवाइज आप मायूसी के साथ उनके साथ बैठ गए और आपका माइंड कहीं चल रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली एब्सेंट है, तो फिर वो आपको उस तरह के रेस्पोंडेंट जो है आपके साथ उस तरह का शायद बिहेव नहीं करेगा कि जो आप लेना चाहते हैं वो उनसे नहीं ले पाओगे। तो हमको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना जरूरी है। हम जब भी हैं स्मार्टली हम मुस्कुराएं और अच्छे से हम वहां अपीयर हों उनके साथ। दूसरी बात करते हैं हेल्दी। यदि हेल्दी नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए आजकल तो कोरोना के बाद तो ये सब हो गया है कि किसी को जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, तो वो अलाउ नहीं करते हैं आपको। गेस्ट को भी आप अलाउ नहीं करते हैं किसी को अपने घर में, या उसको आइसोलेशन में रखते हैं कि जाइए आप सेपरेट अपने हैं, फिर वो देखते हैं। तो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। यदि आप हेल्दी नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, या आपको बहुत सारे और भी कुछ है, तो आप फील्ड में जाएंगे या रिसर्च करेंगे तो शायद वो फैक्ट्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो रिसर्च में आपको वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमको हेल्दी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात करें कि परसिस्टेंस, साधनशीलता यानी धैर्यवान। अब हम गए कहीं फील्ड में गए, या हम किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करने बैठे हैं, बहुत सारी बुक्स देख ली, बहुत सारी लाइब्रेरी देखी, बहुत सारा देख के हम तो घबरा गए हैं उससे कि ये हम नहीं कर पाएंगे और हम छोड़ देते हैं। यदि आप ऐसे करेंगे तो आप उस रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कैसे रूट कॉज तक पहुंचेंगे? तो इसलिए हमको क्या, परसिस्टेंस, लगातार आपको उसमें काम करना होगा, धैर्य से काम करना होगा, बिना रोक टोक के। कई बार हम जाते हैं, जैसे वो मार्केटिंग वाले आते हैं ना, दरवाजा नॉक करते हैं और हम कहते हैं आप किस लिए आए हो, वो अपनी मार्केटिंग की, वो अपन उसको झिड़की देके वापस भेज देते हैं। तो हो सकता है कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रिसर्च में दूर हट जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि आप पहले से परमिशन लेके जाएंगे, उनसे पहले से संपर्क करके जाएंगे, उनसे टाइम लेंगे और टाइम के पंक्चुअल होंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो अच्छे से बिहेव करेंगे और अच्छे से जो चाहते हैं वो फैक्ट्स आप कलेक्ट कर पाएंगे। टॉलरेंस यानी कि आपको वो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। उन्होंने आप वो कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं उनके सामने, आप ज्यादा बोल रहे हैं, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि आप जाइए। आपको तो लेना है, उनसे लेना है, फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको मौका दें और आप उतना ही बोलें जितनी जरूरत हो। तो निश्चित रूप से वो आपको वो सब चीजें बताने को तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हमको टॉलरेंस भी बहुत जरूरी है। तो ये रही हमारी फिजिकल और पर्सनल क्वालिटीज। अब दूसरी क्वालिटीज के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। वही इंटेलेक्चुअल क्या क्वालिटीज होनी चाहिए रिसर्चर में, क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि इंटेलेक्चुअल क्वालिटी नहीं है तो आप कैसे बातचीत करेंगे, कैसे फैक्ट्स को वहां से निकाल पाएंगे? मान लीजिए हमको ये पता करना हो कि भाई हम ऑब्जर्वेशन मेथड तो यूज करते ही हैं, बाकी साथ में कई चीजें हम साथ में चलती हैं ऑब्जर्वेशन के साथ साथ। तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, जो रिसर्चर है क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए उसके अंदर। क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए, उसमें रचनात्मक कल्पना शक्ति होनी चाहिए। वो उस तरह की बात करे रिसर्चर की तरह। जैसे देखिए न्यूटन की जब हम बात करते हैं, न्यूटन यदि ये नहीं कहता कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, जब उन्होंने ये बात की तो लोगों ने कहा ये किस तरह की बात कर रहे हैं, बेवकूफ है, आज तक कोई चीज ऊपर गई है, सब नीचे ही तो आती है, ये पागल हो गए हैं। तो फिलोसोफर कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। तो हमको कैसा करना चाहिए? इमेजिनेशन करने में कोई नुकसान नहीं होता है, तो हमको भी उस तरह की इमेजिनेशन करनी चाहिए, ताकि क्रिएटिव इमेजिनेशन होगा तभी हम उसकी तरफ कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो पिछली चीजें चली आ रही हैं और हम कोई आगे की बात नहीं सोचे है। हो सकता है वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन गलत तो जब होंगी जब फैक्ट्स कलेक्ट होंगे तब।
बिना उसको प्रूव किए या डिसप्रूव जब तक वो नहीं होती है तब तक तो हमको वो करना ही है। तो हमारा जो इमेजिनेशंस हैं वो क्रिएटिव होनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी हमारे अंदर। नेक्स्ट है अर्ग्यूइंग पावर, यानी कि हमको तर्क वितर्क लॉजिक की बात करनी पड़ेगी कि ये क्यों होता है। जैसे छोटे बच्चे हमेशा पूछते हैं मम्मी से, पापा से या छोटे भाई बहनों से कि भाई ये चंदा मामा है, ये उसमें ये जो गुड़िया है ये क्यों वहां कैसे पहुंची। देखिए इस तरह की हम इमेजिनेशन हम बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि वो चंदा है, चंदा मामा में एक बुढ़िया है, वो सूत काट रही है, तो ये क्या है। बच्चों को हम हमेशा यही बताते हैं। तो बच्चे कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि भाई वो कैसे पहुंची, कौन से रॉकेट से गई या कौन से वायुयान से गई या ट्रेन से गई, कैसे पहुंची। तो फिर हम उनको, हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, लेकिन हम उसको कैसा लॉजिक देते हैं उस समय, उसको धार्मिक तरीके से सोचते हैं और उस तरह का ही जवाब देते हैं, क्योंकि बच्चों को हम, लेकिन कई बार जब रिसर्चर जाएगा तो रिसर्चर हो सकता है जिस रेस्पोंडेंट या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, बहुत सीनियर भी हो सकते हैं और उस फील्ड के वो जानकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो आपसे हर चीज पर आपसे जस्टिफिकेशन उसे पूछेगा कि भाई ये क्यों, आप ये क्यों कर रहे हैं, ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया और इसमें आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है। बहुत सारे सवाल, तर्क वितर्क, तो आपके अंदर उनको सेटिस्फाई करने की सारे आर्ग्यूइंग पावर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, यानी कि आपको शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए एक रिसर्चर के अंदर। कैसे लेगा, क्यों लेगा, कब लेगा, कहाँ। कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है कि आपको इमीडिएट डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उसकी नेचर क्या है, तो आपको डिसीजन लेना होता है। यदि आप उस समय डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाए तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। मान लीजिए किसी भी फील्ड में हो सकता है कि वो किस तरह का कर रहा है। देखिए सोशल साइंसेज में तो लिमिटेशंस है कि हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज तो करते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस है किस तरह से हम यूज करते हैं। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, वहां हमारे पास कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। सोशल साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कांस्टेंट या जिनको हम स्थिर नहीं कर सकते। मान लीजिए हम किसी एक इंडिविजुअल को लेकर या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसका स्टेटस, जैसे मान लीजिए उसकी एज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, 18 ईयर्स होते ही उसका स्टेटस बदल जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल साइंसेज में, और यहाँ हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की कर रहे हैं। तो ऐसे में ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस है हमारी, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। कई बार हम जब भी फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, या हम अपनी जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़े। पहले उसको क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी हमारे सवाल हैं, वो सब क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए हर चीज का हमारे सामने। क्योंकि हम जब उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो उससे हम क्या जानना चाहते हैं, तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग होगी तभी तो। हम उनसे पूछना कुछ चाहते हैं और हमारा हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ और ही बात, उसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है। तो इसलिए ये सब आपको पहले से करना होता है। अदरवाइज यदि क्लैरिटी नहीं है तो इसीलिए तो हम पायलट टेस्ट करते हैं, ताकि यदि कहीं भी कोई वेरिएशंस है या कहीं कोई गलत फहमी हो रही है उसको सोचने की या उसको समझने की, तो वो दूर हो जाए। तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, जब भी बात करें उसकी जो भी थ्योरीज हैं, जो भी इसके ऊपर काम हुए हैं, उनको हम इसीलिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि ये सब चीज हमारी क्लियर हो जाए। तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल एबिलिटी। अब चूंकि सोशल साइंसेज में हम कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हम बात करें साइकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी,
और आजकल तो SPSS जो भी फील्ड विजिट एम्पिरिकल जो सर्वे हो रहे हैं, एम्पिरिकल स्टडी हो रही है, उन सब में SPSS में उसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को। और आजकल तो और भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो वहां भी स्टेटिस्टिकल तो हमको वो एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज हम किस तरह से कैसे कर पाएंगे, कैसे एवरेज निकाल पाएंगे, कैसे उसको टेस्ट कर पाएंगे, टी टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट करना है। तो वो सब जानने के लिए इंटेलेक्चुअल हमारे अंदर वो ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उसकी एबिलिटी रखते हो स्टेटिस्टिकल्स की भी। इसीलिए तो ट्रेनिंग और ये करवाई जाती है, चाहे ICSSR करवाता है, चाहे UGC करवाता है, 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन रिसर्च मेथोलॉजी। आजकल तो स्पेशली करवाने लग गए हैं कि किस क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड या SPSS के ऊपर स्पेसिफिक फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत सारे। फिर है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। देखिए आजकल जो चल रहा है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की, जब हम बात करते हैं तो जो ये प्लेजरिज्म की जो बात आई है, यानी कि हमें जो भी हम जिस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिस थ्योरी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिसको बेस बना रहे हैं, या हमने किसी भी जो पहले से रिसर्च की है या किसी भी बुक है या किसी का आर्टिकल है, तो हम ऑनेस्टली उसको बताएं कि हमने इसको यूज किया है और उसको वहां उसका मेंशन करें रेफरेंस के रूप में। तो वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है। आजकल ये सब बहुत जरूरी हो गया है, अदरवाइज जो रिसर्चर है जब तक उसकी 10% से बिलो 10% नहीं होगी तब तक वो थीसिस अपनी सबमिट नहीं कर पाएगा। और जैसे ही वो 40% और 60% तक, तो जो गाइड है, सुपरवाइजर है, उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है आज के संदर्भ में। इसलिए ये उतनी ही जिम्मेदारी सुपरवाइजर की भी है और उतनी ही जिम्मेदारी रिसर्च स्कॉलर की है। तो ये हमको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट है, इसको गंभीरता से लेना जरूरी है किसी भी रिसर्चर के लिए। यदि आपने गंभीरता से नहीं लिया तो आपने बहुत सारे आजकल इस तरह के केसेस देखे हैं जो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो भी जहां से भी जिसको भी कंसर्न रेफरेंस के रूप में या जो भी किया है वो उसको आप लिख दें, उसमें मेंशन कर दें, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना आपके वो प्लेजरिज्म वाली प्रॉब्लम आएगी। प्लेजरिज्म वो है कि आप उसको कोट भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको बता भी नहीं रहे हैं और आप उसको नकल भी मार रहे हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज थी रिसर्चर की। अब हम बात करते हैं थर्ड जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, क्वालिटीज बिहेवियरल क्वालिटीज, व्यवहार संबंधी, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक रिसर्चर को किस तरह का बिहेव करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्चर को हमेशा एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं कहता है ये जो फ्रेमवर्क है, ये इसमें ऐसा नहीं कहा कि वो एक जैसा बिहेव करे। देखिए सिचुएशन के हिसाब से भी करे, लेकिन जब वो रिसर्च कर रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करना होता है। तो पहली है रिफाइंड मैनर्स। अब ये रिफाइंड मैनर्स क्या है? परिमार्जित आपके व्यवहार कैसा, परिमार्जित कैसा है। एक तो क्या होता है कि हम जब भी कहीं बात कर रहे हैं, रिसर्चर जब बात करता है तो रिसर्चर को बड़े गौर से सुना जाता है। आप आम लोगों के बीच में जाएंगे तो वो सोचेंगे कि ये तो रिसर्चर हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच्ड रिसर्चर है, चाहे वो कोई और भी हो सकता है। तो वो किस तरह का, उसकी बात को गौर से सुना जाएगा। क्यों सुना जाएगा? क्योंकि उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास उसके फैक्ट्स होंगे। वो ऐसे ही बात नहीं कर रहा हवा में। रिसर्च से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी बात करेगा वो फैक्ट के साथ करेगा, लॉजिक के साथ करेगा। तो हम जब भी बिहेव करें तो किस तरह का करें, यानी कि साफ बिहेव, तभी आप कुछ चीजें कलेक्ट कर पाओगे। जैसे हम फील्ड में गए मान लीजिए और हमने उनके साथ वैसा ही बिहेव, हम ज्यादा बोल रहे हैं या हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनके कारण वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप वो फैक्ट्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया है तो निश्चित रूप से आप जितना प्राप्त करना चाहते हैं, जो फैक्ट्स लेना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा आपको वो जानकारी हो सकता है, वो गहराई तक की
जानकारी आपको देंगे। जैसे मान लीजिए कोई करप्शन पर करना चाह रहा हो और करप्शन के बारे में आप किसी से बात करोगे कि आपने डायरेक्ट अटैक कर दिया कि सर आपने अब तक कितना करप्शन का पैसा लिया है, तो क्या आपको वो जवाब देगा या क्या आपसे बात करेगा? जाइए आप, किस तरह से बदतमीजी से आप बात करने आए हो, वो कोई जवाब नहीं देगा। और कैसे बात करेंगे? आप उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करें कि सर देखिए देश में ही नहीं पूरी दुनिया में किस तरह से करप्शन बढ़ता जा रहा है, सरकार की जो स्कीमें हैं आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, तो वो धीरे धीरे आपसे बात करेगा कि देखिए सर कुछ केसेस ऐसे लाइए, उनका इंटरेस्ट उस ओर लाइए। उसके बाद वो आपने आप बता देगा कि देखिए सब लोग भ्रष्ट हैं, वो लास्ट में ये कहेगा कि सभी जगह भ्रष्टाचार है। तो इसका मतलब आपको वो टेक्निक्स आनी चाहिए, वो आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। यदि आप डायरेक्ट अटैक करेंगे तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा और उस तरह के फैक्ट्स आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि सर कितने देखिए कितने लोग ईमानदार हैं। आप चाहे सिविल सर्वेंट्स को देखिए, बस आप बोल रहे मिस्टर थे ना, चलिए कोई माइक अपूर्व, नहीं, ऑफ कर दीजिए प्लीज। या चलिए मैंने कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने म्यूट तो कर दिया, उस ठीक तरह है। से एक रिसर्चर को रिफाइंड मैनर्स के तरह उसको बात करनी चाहिए, रिफाइंड मैनर्स के साथ। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। अब वो सेल्फ कंट्रोल कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया कि जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है? सामने वाले को पहले सुनना है, अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, है। और जब वो आपको लगेगा कि अब उनकी बात पूरी हो गई है, उसके बाद आप उनसे परमिशन लें कि सर क्या मैं आपको इस संदर्भ में बात कर सकता हूँ? तो बिल्कुल वो नहीं नहीं जी जरूर करिए, आप बताइए आप क्या जानकारी रखते हैं, तब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से। और यदि आप खुद ही बोले जा रहे हैं, कई बार आदत होती है ना कुछ लोगों की दूसरे की सुननी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, कोई भी है, चाहे हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे। कई बार स्टडी में भी होता है, हम बहुत सारा वो बुक्स कलेक्ट कर लेंगे, थीसिस कलेक्ट कर लेंगे, अब वो कहता है कि ये सब बेकार है, मेरे से नहीं होगा ये सब काम। और कई बार ऐसा देखा है हमने कि वो रिसर्चर बीच में ही पीएचडी छोड़ के चला जाता है। तो ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल खो देता है वो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को लाने की लाइन पे कोशिश की और कुछ को 50% को मैं कोशिश कर पाया कि वो अपनी लाइन पे आके पीएचडी कर पाए दोबारा से। वो सब अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको अपने आप को रिसर्च के फील्ड में उस प्रॉब्लम के साथ जोड़ना होगा। यदि आपने वो जो भी प्रॉब्लम चूज की है, यदि अपने इंटरेस्ट या अपनी मर्जी से नहीं किए ना, तो उसके बाद क्या होता है? उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ना आप कोई फैक्ट्स कलेक्ट कर पाओगे, ना आप अपनी रिसर्च कर पाओगे। और जो जेआरएफ है उनके लिए खासकर बता देता हूँ वो क्या करते हैं, 4.5 ईयर तक क्या करते हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं दिल्ली में जाके, और लास्ट के 6 मंथ में क्या करते हैं, येन केन प्रकारेण सबमिट हो जाए अपनी। तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो या तो पीसीएस अपने स्टेट लेवल की या सिविल सर्विसेज के लिए वो दिल्ली चले जाते हैं या जहां भी वो अपना तैयारी करते हैं, और वो पीएचडी में उसका, क्योंकि वो ना तो उनकी प्रॉब्लम अपने आप को कहेंगे कि सर गुरुजी आप ही बता दीजिए जो भी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है, जो टॉपिक देना आप दे दो मैं कर लूंगा। अब क्या कर लूंगा भाई, उसमें तो पीएचडी करनी है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में आप कैसे करोगे? तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल, और वो जब ही होगा जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, प्रॉब्लम आपकी अपनी चूज की हुई होगी। फिर है एडेप्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर। ये क्या है? व्यवहार में अनुकूलनशीलता, कि आप जहां जैसी परिस्थिति है वहां वैसे, जैसे मान लीजिए कोई रूरल एरियाज में या कोई जो स्लम एरियाज हैं, झुग्गी झोंपड़ी में हम जाते हैं फैक्ट्स कलेक्ट करने, और हम कहें कि यहाँ तो बहुत गंदगी है या उस तरह का, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम इनकी चाय नहीं पियेंगे, तो क्या होगा? आपको कोई फैक्ट्स कलेक्ट करने देगा? आपको क्या वो बताएंगे वो जो रियलिटी है उसकी? और रियलिटी तक पहुंचने के लिए आपको वो सब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। आपने देखा है जो दुनिया में बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं,
एंथ्रोपोलॉजी में बड़ी रिसर्च हुई है, सोशियोलॉजी में भी हुई है। तो उन लोगों ने ऐसे ही नहीं की, उन्होंने ट्राइबल्स के लिए, जैसे जो बहुत आउटर है, दुनिया से कटी हुई है, उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि वो ट्राइबल्स तो किसी से बात करने को तैयार नहीं होते हैं, उन तक पहुंचना इसका मतलब है अपने आप का खतरा मोल लेना है। तो उसके लिए आपको पहले से 10 to 20 ईयर्स तक पहले मेहनत करनी पड़ती है कि हम उनको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, वो क्या खाते हैं, क्या से रहते हैं, और वो सब करना, पार्टिसिपेटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। तब जाके आप उनकी जो रियलिटी है वो जान पाओगे। उसके बाद वो 10 ईयर्स तक उनके साथ रहते हैं ट्राइबल बन के, और उसके बाद जब वो उनकी स्टडी आती है तो तब वो वर्ल्ड फेम होती है। ऐसे ही नहीं होती है कि वो 4 दिन में हमने ये डेटा इधर से लिया और उधर से किया और ये लो साहब थीसिस। तो इसलिए एडेप्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, जहां हम जा रहे हैं, रूरल एरियाज में जा रहे हैं या अर्बन एरियाज में जा रहे हैं या स्लम एरियाज में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो वहां के, अब की आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो आप वहां नहीं जाएं, आप पहले से उसको थोड़ा सीख के जाएं, उनके साथ थोड़ा सा शालीन व्यवहार करें। आप उस गांव के किसी अपने मित्र बनाएं किसी को, और वो भी आपको मदद कर सकते हैं। तो उस तरह से आप उनके साथ बिहेव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फैक्ट्स आप कलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप वो नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो कलेक्ट नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। फिर है नेक्स्ट है अलर्टनेस, सतर्कता। देखिए, जहां भी हम हैं, किसी फील्ड में हम देख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं या किसी एरिया को देख रहे हैं, तो हमको वहां अलर्ट होके एक एक चीज को बारीकी से देखना चाहिए। या हम किसी का इंटरव्यू 10 कर रहे मिनट और हैं रहेगा। या हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें बारीकी से जरूर है, अलर्ट होके वो जो भी बात आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान कहीं और है और वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बता दिया उन्होंने और हमको पता ही नहीं चला, हम तो कहीं और ही खोए हुए थे। तो इसलिए हर चीज को अलर्ट, जैसे आपको रियलिटी पता करनी है और आप किसी के यहाँ गए हैं, तो वहाँ आपको ऑब्जर्वेशन भी मेथड यूज करना होगा। आप क्वेश्चंस भी आप उनके साथ इंटरव्यू भी करेंगे, तो उस स्थिति में आपको अलर्ट होने की जरूरत रहती है, ताकि कोई भी इस तरह का आपके साथ फैक्ट नहीं निकल जाए जिसकी आप बहुत अहम भूमिका हो सकती है उस रिसर्च के दौरान। तो इस तरह से रिसर्चर को अलर्ट होना चाहिए। फिर है बैलेंस टॉक, संतुलित वार्तालाप करें। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपसे बात पूछी जाए तो जरूर उससे आपके पास जवाब होने चाहिए, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी स्टडी कर चुके होते हैं और प्रॉब्लम के बारे में भी होते हैं। तो आप बैलेंस टॉक करें, यानी कि जब आपसे रेस्पोंडेंट बात करता है या आप किसी भी फील्ड में गए हैं, या जैसे मान लीजिए कोई जाके सिविल सर्वेंट्स पर स्टडी कर रहा है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा। आपने उनके साथ उतनी ही बात करनी है जितना वो चाहते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट निकालने हैं। तो वो जो बात करेंगे उसको हमको अच्छे से सुन के और अच्छे से ऑब्जर्व करके वो बात हमको सुननी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि वो हमें वो बता नहीं पाएंगे जो हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमको अलर्ट भी रहना है और बैलेंस टॉक भी करनी है। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं रिसर्चर में जो बिहेवियर क्वालिटीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारी क्वालिटीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब आप आ जाइए अपने सब्जेक्ट पर। अब आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बहुत सारी बुक्स भी पढ़े होंगे, बहुत सारी थीसिस भी देखी होंगी, और बहुत सारे जो उससे रिलेटेड जो करंट सिनेरियो है वो सब निश्चित रूप से वो बात करेंगे आपके साथ जहां भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो बात की कि इस क्वालिटीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, उस जो भी आपने विषय चूज किया है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। यदि आपकी रुचि नहीं है, आपका उसमें रुझान नहीं है, आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, आप उसमें कुछ जानना नहीं चाहते, आप उसमें कुछ ऐसा कोई तथ्य नहीं निकालना चाहते,
तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए, हमें हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में भी हम काम कर रहे हैं तो उसका जो भी थीसिस का सब्जेक्ट हो उसमें हमारा किसी भी रिसर्चर को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे से उसमें काम कर पाएगा और फैक्ट्स भी कलेक्ट कर पाएगा और एक अच्छे जो रिजल्ट तक पहुंच पाएगा साइंटिफिक मेथड यूज करते हुए। वो जो रियलिटी है वहां तक वो पहुंच पाएगा। निश्चित रूप से वो अच्छे से कोई नहीं, आराम से लगा लो। उस थ्योरी बिल्डिंग की प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरा है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। देखिए इंटरेस्ट होगा तो निश्चित रूप से वो उसमें अध्ययन करेंगे, क्या क्या है वो जानने की उसमें जिज्ञासा रहेगी, क्यूरियोसिटी रहती है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। विषय में पारंगत होने के लिए वो बहुत सारे चैनल्स को देखता है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल है, चाहे वो ऑनलाइन आजकल वीडियोस हैं, चाहे वो थीसिस हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हैं। तो बहुत सारे आजकल शोध गंगा है, तो आपको बहुत सारे आपको पता चल जाएगा। तो हमारी उस पर मास्टरी होनी चाहिए। जिस क्योंकि हम कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे और हमसे सबसे पहला सवाल होगा कि क्या टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या है। जैसे ही टॉपिक होगा निश्चित रूप से आपके सवालों का आपके ऊपर सवाल बहुत सारे पूछे जाने हैं। दूसरा जनरली सवाल होता है आप किसके साथ कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है किसके साथ कर रहे हैं। और तीसरा किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रहे एक जो जिसको कहें एक इंट्रोडक्टरी। उसके बाद वो बात करेगा अच्छा ये टॉपिक आपने कैसे चुना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे लगा कि इसी प्रॉब्लम को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड तो पहले भी काम हुए होंगे, वो ये जरूर पूछेगा, उसको नॉलेज नहीं है तो भी पूछेगा, इसके ऊपर आपके काम हुए होंगे तो वो जरूर बात करता है। तो मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट जब भी हम जाएं तो हम उसमें उसको लेके जाएं कि हमारे को सारे सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन ऑन द प्रॉब्लम। अब हम इधर उधर की बात नहीं करें। जैसे मान लीजिए हम अपने प्रॉब्लम को लेकर के वहां बात करने गए हैं या फैक्ट कलेक्ट करने गए हैं और हमने दूसरे ही मुद्दे छेड़ दिए, पॉलिटिक्स के छेड़ दिए, तो देखिए जो सामने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप जो फैक्ट कलेक्ट करना चाहते हैं, आप जो रिसर्च करना चाहते हैं वो सब छूट जाएंगे और आपका समय खराब हो जाएगा और आप अपने रिसर्च में जो रियलिटी लाना चाहते थे वो वहीं छूट जाएंगे। इसलिए आप कंसंट्रेशन ऑन द प्रॉब्लम, इधर उधर की बात नहीं करें। इधर उधर में आप बात कर लगा दोगे तो सारा समय, उसका भी समय लिमिटेड होता है टाइम की। ऐसा नहीं है कि उनके पास समय ऐसा ही होता है, हर आदमी आपको उतना समय नहीं देगा। तो ये थी जो उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वालिटीज। नेक्स्ट है क्वालिटीज रिलेटेड टू फील्ड वर्क। अब आप फील्ड वर्क करने जाएंगे तो रिसर्चर को क्या करना चाहिए, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। तो देखिए ये जो सवाल है ये इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पता नहीं होती है। तो मेथोडोलॉजी पता नहीं होगी तो रिसर्च कैसे करेंगे। तो इसलिए जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और एक्सपीरियंसेस हैं, ये इस तरह के जो लेक्चर हैं, लेक्चर सीरीज हैं, वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि रिसर्चर पहले से ये सब कुछ जान के जाए कि उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, कौन सी टेक्निक कब काम आती है, कौन सा टेस्ट कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कौन सा मेथड, कौन सा टूल, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग और इस तरह के जो आपके लेक्चर सीरीज है वो आपका जो एक्सपीरियंस है आपके सीनियर हैं उनके साथ, या पुरानी थीसिस आप देखेंगे, पुराने पेपर्स आप देखेंगे, तो उससे आपको ये सब चीजें पता चलेगी कि कौन से मेथड कब कैसे काम में है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन, टाइम एंड प्लेस। अब आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन सी जगह जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है, क्या टाइम उसने दिया है और किस जगह पर मिलना है। यदि ये हम सब नहीं करके गए तो आप क्या करोगे, आपको टाइम दिया था 1 बजे या 12 बजे का, आप पहुंच रहे हो 2 बजे, वो उनका सोने का टाइम है, क्या वो आपसे बात करेगा, आपको वापस भेज देगा। इसलिए हमको सबसे पहले वो सब समझना चाहिए, किस व्यक्ति से मिलना है हमको, हमारा क्या टारगेट ग्रुप क्या है और उसमें हमको किस समय जाना है, किस जगह पर जाना है, वो सब पहले से क्लियर होना चाहिए।
तो एक रिसर्चर के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर है रिसोर्सफुलनेस। अब देखिए, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कि जब आप जिस टॉपिक को लेकर के जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को लेके जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कोई भी बात उससे रिलेटेड करें तो आपके पास उनके जवाब होने चाहिए। तो इसलिए हम रिसोर्सफुलनेस होने चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। आप किस तरह से, कौन सा, कैसे उसको करोगे। आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं या जो भी आपका फील्ड वर्क है या जहां भी आप ऑब्जर्वेशन मिक्स मेथड यूज करें, तो उसको आपको पहले से वेल ऑर्गेनाइज करना होगा। उसका पूरा, जैसे हम करते हैं ना कि ये या 3 साल में करेंगे, तो हम पहले 6 महीने में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फिर ये करेंगे ये करेंगे, तो ये सब आपको करना होता है। तो उसको आप काम को ऑर्गेनाइज करके चलें। नेक्स्ट है क्वालिटीज रिलेटेड टू साइंटिफिक स्पिरिट। वैज्ञानिक भावना संबंधी उसमें किस तरह की होनी चाहिए। यदि आपकी स्पिरिट साइंटिफिक नहीं है तो क्या होगा, आपके फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। जैसे कोई कास्ट सिस्टम को लेकर के बात कर रहा है, लेकिन जब अपनी कास्ट की बात आएगी, अपने धर्म की बात आएगी, अपने बात आएगी, तो जो उसकी कमजोरियां होती हैं, क्या वो आप बाहर निकालोगे। यदि साइंटिफिक स्पिरिट होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए साइंस में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। आप उस जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री में कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, तो वो इस लैब में बैठ के कर रहे हैं या अमेरिका की लैब में बैठ के कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं, सेम आते हैं। कौन कर रहा है, सामने वाला ये नहीं देखता है। लेकिन सोशल साइंस की लैब में कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए साइंटिफिक स्प्रेड होने जरूरी है। यदि आपको रियलिटी जानना है, उसके रूट कॉज को जानना है, और जब तक रूट कॉज नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसलिए हमको साइंटिफिक स्प्रिट, उसके लिए क्या, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं और क्या उसको रियल में जानना चाहते हैं, तो आप वो सब भूल जाएं कि कौन है, क्या है, मैं किस जाति का हूं, मैं किस राज्य का हूं, वो सब भूल जाएं। लेकिन क्या सोशल साइंस में ये इतना आसान है, इसीलिए तो लिमिटेशंस हैं, इसीलिए तो 100% जो हम उसमें नहीं जाते, हमारे रिजल्ट जो थ्योरी बिल्डिंग है वो 100% नहीं हो पाती है। साइंस में तो आप देखिए, जो रिजल्ट यहाँ आने हैं, नीले लिटमस से लाल का होना है, वो स्विट्जरलैंड में बैठ के भी वो तभी होगा जब सॉल्यूशन में उतना कंसंट्रेशन जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर आप स्टेट में जाएंगे, अलग कंट्री में जाएंगे, अलग गांव में जाएंगे, अलग शहर में जाएंगे, तो उसके रिजल्ट अलग होंगे। और लास्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो है, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। आप कोई वायस फ्री होने चाहिए, आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, और आप साइंटिफिक स्पिरिट के साथ उसमें फैक्ट्स कलेक्ट करें, रिसर्च करें। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करें या मिक्स्ड मेथड करें या आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करें, तो वो आपको जरूर उसमें मदद करेगा और अच्छी रिसर्च वो कहलाएगी। उसी में आपका थ्योरी बिल्डिंग हो सकती है। तो ये कुछ क्वालिटीज की हमने बात करी जो एक रिसर्चर में होना जरूरी है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी। इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल हो तो विकास जी और साक्षी जी आप सभी दिख रहे हैं, तो वेलकम है उनका। जो भी किसी को कोई कमेंट करना हो या कोई बात करनी हो इस संदर्भ में। जी, okay, thank you so much, sir. So now I want to invite again Sakshi Singh ji, and I also request to Sakshi Singh, please open the session for the questions answer, and if any participants have any query, so yes, Sakshi Singh ji. आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सर से आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं।
सर मैं क्षमा चाहूंगा मैं सबसे पहले बात करने के लिए। सर मैं अश्विनी कुमार रिसेंटली अपना ऑलमोस्ट 60% डेटा कलेक्शन का काम खत्म किया हूँ। पर सर जैसे आपने बताया कि आपके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैं गया था स्पेशली यूपी के इलाहाबाद एरिया में, तो कुछ ऐसे हमारे रिस्पोंडेंट मिले कि लाइक दे इंसल्टेड मी इन इन सच अ मैनर, लाइक ऐसा लगा कि आप पीएचडी छोड़ ही दो। तो सर इस तरीके की उससे डर से किस तरह से डील किया जाए, फिर भी सर करके आया हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, इलाहाबाद में ऐसे लोग मिले हैं? यस सर, यस सर। they were like देखिए, really I just asked, ये उनके पेरेंट्स थे तो they were like little थोड़ा सा कम सुन रहे थे, और ओके। वो सरकारी गवर्नमेंट रिटायर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको सैलरी मिलती है? जस्ट बिकॉज हमारा सोशियो इकोनॉमिक सर एक डेमोग्राफिक वेरिएबल भी है। तो उनको, तो उनके सुपुत्र खड़े थे लगभग, ही वाज अडल्ट इनफ, वो तो गुस्सा गए कि हाउ डे टू आस्क लाइक उसकी सैलरी। So they abused me in nonsense way. It was really bad experience, sir. आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, और ये हमने अपनी जो एसेंशियल क्वालिटीज में भी हमने बात की थी कि इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन आपको क्या इस एक क्वेश्चन के ऊपर ही आपको बहुत सारे लोगों ने बात की कि इस तरह की क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? एक ही क्वेश्चन था या और भी क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने उस तरह की बात की? नहीं सर, मतलब उनको उस टाइम पे बस एक ही प्रश्न को लेके लगा कि भाई आप हमारी सैलरी क्यों पूछ रहे हो। इफ यू वांट सर, आई एम वर्किंग विद द सैनिटेशन, लाइक इकोनॉमिक एस्पेक्ट आई एम जस्ट चेकिंग। तो they were like okay, if you want to about know about my village situation and my personal sanitation practices, then ask about that कि हाथ धोते हो या नहीं धोते हो, लाइक नालियां साफ करते हो नहीं। तुमने सैलरी क्यों पूछी, हमारा हमारे पापा का पेंशन क्यों पूछी? तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे इसलिए शायद गुस्सा आ गए। तो फिर उस टाइम पे सर बहुत गंदा लग रहा था। तो उस देखिए, हमने यही तो बात कही कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पर हो सकता है हमको उस तरह की डांट भी खानी पड़ती है रिसर्चर को, लेकिन हम उसको और सॉफ्ट वे में और दूसरे तरीके से भी उनको निकाल सकते हैं। आपने आपको लगा कि इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही प्रॉब्लम हो रही है रेस्पोंडेंट में, तो हम उस क्वेश्चन को और सॉफ्ट कर सकते हैं और दूसरे तरीके से उसको पूछ सकते हैं कि आप आपके घर में इतना खर्चा होता है, किस तरह से आप चलाते हैं, आपकी एवरेज इनकम, आपकी जो सैलरी का हिस्सा है वो, मतलब उसको आप एक साथ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे लाएं। तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे आपको बता देंगे। लेकिन हो सकता है कि उस एक ही सवाल से, जैसे आप, हो सकता है आपने किसी की जैसे हम बात करते हैं कहीं भी जाते हैं, किसी से एज पूछ ली तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। यस सर। तो ऐसे ही जो इनकम की बात हो जाती है तो वहां भी कुछ लोगों को उस तरह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको हम बहुत सॉफ्ट वे में चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी से पूछ लो कि आप क्या करप्शन, आप रिश्वत लेते हैं क्या, तो क्या वो बताएगा? और आप उससे धीरे धीरे बात करिए तो वो कहेगा सभी लोग हैं आजकल, तो हर आदमी करप्ट हो गया है। तो ये इस तरह से हम उसको और थोड़ा सा, इसीलिए हम पायलट टेस्ट करते हैं कि किस क्वेश्चन से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पोंडेंट कहाँ किस तरह से, तो उसको और सॉफ्ट बनाया जा सकता है। और आप यूपी में कर रहे जी हैं सर, थैंक यू। और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार इस तरह हेलो, की बातें आ जाती हैं। हाँ, बताइए। good evening, sir. गुड इवनिंग। So this is Professor Sunita. There is a question from my side. Sir, my question is बताइए। that when we were doing the data analysis, sir, there is a even the guide used to say that make the difference between interpretation and inferences. Sir, I have a doubt regarding this only. What to mention in interpretation and what to mention in बस inferences? 2 मिनट का बचा है। तो देखिए, ये तो अब आपका जो रिसर्च की जो मैं प्रॉब्लम वाजपेयी क्या सर से है बता और के आप आया हूँ। किस तरह का एडीएन वाजपेयी सर डेटा है ना, वाइस एनालिसिस चांसलर, कर रहे हैं, उनसे बता के उसकी आया क्या हूँ नेचर है, मैं।
और आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं 5 मिनट उसके का ऊपर बचा है, डिपेंड लास्ट करेगा चल रहा है, कि क्वेश्चन आप क्या आंसर चल करना चाह रहे रहे हैं हैं, उसमें। उसको बात करें। और आपको गाइड जो भी अरे कर रहे हैं थैंक तो यू, इसका आपने मतलब इतना है कि कोऑपरेट मेरा कहीं किया। कहीं वो साइंटिफिक तरीके से कुछ ना कुछ उसमें एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो ये तो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का करना चाहते हैं। जी sir, like cron by alpha we were using, and like interpretation, one example sir, like 30 male and 30 female. So we used to mention in interpretation 30 male and 30 female. The data analysis, like the data were collected accordingly, right? But sir said like inferences you also have to mention in inferences. Sir, what to write in inferences? वही दिक्कत तो आ रही है देखिए, सर कि समझ में नहीं आ रहा है कि इन्फरेंसेस में फिर क्या अलग से लिखेंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में तो हम पहले ही मेंशन कर दिए हैं कि 30 मेल है 30 फीमेल है। ये तो है नहीं, तो इसमें तो देखिए वही एनालिसिस करोगे आप, और इसके अलावा क्या Institution. करोगे? आपका 30 मेल है 30 फीमेल है, तो वो तो आपको वही करना पड़ेगा उसमें, और तो कैसे करेंगे उसको? तो ठीक है कि उसको आप 30 मेल को 30 मेल ही करेंगे, 30 फीमेल को 30 फीमेल ही करोगे उसमें। तो बराबर अब है उसमें आप हाँ, जी सर, वही वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मतलब इस चीज को लेकर के काफी डिस्कस भी नहीं तो हुआ वो है। आप गाइड के साथ करें ना कि आप मतलब क्या क्या चाहते हैं उसमें, किस किस तरह से चाहते हैं, तो वो आप फिर डिटेल में वो जी बता सर, सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, तो जी सर, तभी जी हो सर, पाएगा, अदरवाइज तो। हेलो जी So, सर, may जी I सर, comment on her question? मैडम ये मैं सर। हेलो Okay, संतोष जी, खुशबू जी, संतोष जी पहले आप बोलिए। नमस्कार सर, मैं संतोष गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का रिसर्च स्कॉलर हूँ, इतिहास विषय का, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार शोध करते समय हमें ये दिक्कत होती है कि कई बार रेफरेंसेज नहीं मिल पाते। उसके अलावा कई बार जो है ये भी दिक्कत आती है कि हम जब शोध करते हैं तो जो है गाइड से कई बार अनबन होने के चक्करों में गाइड जो है कई बार उसको नेग्लेक्ट कर देता है। ये चीज जो है बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपकी बात सही है, लेकिन इसीलिए ये जो एसेंशियल क्वालिटीज हमने इसीलिए बात की है कि आप गाइड के साथ भी तालमेल बिठाएं, और आप अपने फील्ड और सब्जेक्ट के साथ भी तालमेल बिठाएं, और ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ आप रिसर्च करेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देखिए, हर तरह के लोग हैं, और आपको उनके साथ उनकी नेचर के हिसाब से उसको आपको करना होगा कि हम किस तरह से इसको रिसर्च को कर पाए। तो पर कई ऐसा बार नहीं है कि बताएं पर कई बताएं। बार ये देखने में आता है कि गाइड सीधा सीधा नहीं कहता, लेकिन वो ये कहता है कि मैं मेरे गुरुजी को ऐसे गिफ्ट देता था, हम लोग उस जमाने में ये करते थे, हमने जो है बहुत पढ़ा है। तो वो सीधे सीधे मांगता नहीं है, पर वो वही होता है मकसद। ऐसी परिस्थिति में क्या देखिए, करेगा मुझे जो स्टूडेंट? लगता है, नहीं हो सकता है, देखिए सब तरह के लोग हैं दुनिया में, ऐसा कोई, मैं इस बात को मानने में कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ। सब तरह के टीचर भी हैं और सब तरह के स्टूडेंट भी हैं। आप देखते हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है लाइफ में, हजारों से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं कोर्स वर्क का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ पीएचडी का। तो एक एक बार में 300-300 लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से, और शायद मेरे साथ जितना रिसर्च स्कॉलर मेरे साथ जितना वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, शायद दूसरे टीचर के साथ नहीं कर पाते हैं। चाहे किसी के साथ कैसा भी होता है, वो मेरे से जरूर शेयर करता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ये अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो कई हजार स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो मुझे जो लगता है कि यदि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है, हम अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हैं। दोनों ही बातें होती हैं, जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं, हम जेआरएफ ले रहे हैं या कोई फेलोशिप ले रहे हैं, और हम जाते एक दिन भी नहीं है, तो तब वो, मुझे लगता है कि हो सकता है उसके मन में ये हो कि ये शायद ये मुफ्त का पैसा उठाया जा रहा है, हम भी इस पे साइन करते हैं। तो उन सिचुएशन में यदि हमारा बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं उस फील्ड में, सीरियस होके कर रहे हैं, तो कोई भी टीचर की किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके ऊपर उंगली उठा दे।
ना आपसे एक्सपेक्टेशन करेगा वो। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी होती है कि आप ना तो सीरियस लेते हैं रिसर्च को, ना आप रेगुलरली कहीं उसको क्लास अटेंड करते हैं या जो भी है, तो उन सिचुएशंस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। और कई बार तो झूठे आरोप भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से है, ऐसा भी नहीं है, टीचर के साथ भी ऐसा होता है। मैं सेफ साइड में इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता रहता है, लेकिन स्टूडेंट कई बार ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो उन सिचुएशन में वो इस तरह से आपके साथ बात करते हैं। यदि आप सीरियस होकर काम कर रहे हैं, कोई भी टीचर पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि आपके साथ वो उस तरह की बात कर सकता कि हम ऐसे करते थे या वैसे करते थे। कहीं ना कहीं आपकी कोई कमजोरी होती है, तब जाके वो कुछ इस तरह की बात करना शुरू करते हैं। आप अच्छे जर्नल में पेपर आप पब्लिश करवा दीजिए, अच्छे से काम करके उनको दिखाइए, उनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, उनको हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं इनके कैसे सवाल उठाऊं। मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल दे देता हूं। एक पीडीएफ थी, और वो मैं जोधपुर में था उस समय, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, और मेरे साथ उस लड़की ने पीडीएफ किया और उनको सैंक्शन हो गई थी आईसीएसएसआर से। तब मैंने उनको कहा कि अब आपको सैंक्शन हो गई है, अब इसको ट्रांसफर करवा लीजिए। तो उन्होंने राजस्थान, चूंकि वो जयपुर रहती थी, तो मैंने कहा भाई देखिए आपको दिक्कत होगी, यहाँ जोधपुर आना पड़ेगा और ऐसे होगा, आप वहीं ट्रांसफर करा लीजिए। उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया, उन्होंने अपनी कर ली, पीडीएफ कर ली, सबमिट, रिपोर्ट सबमिट कर दी, सब आईसीएसएसआर से कोई और क्वेरी आई, उसके बाद जो भी थे, जो गाइड थे या हेड थे, उन्होंने उसी तरह की कोई डिमांड की और उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है बहुत अच्छे से और आप जो करना है कर लीजिए। वो वाइस चांसलर के पास पहुंच गई थी और उनको करने पड़े साइन, क्योंकि वो देखिए ईमानदारी बोलती है, और उनको साइन करने पड़े। डिले हुआ 2-3 महीने, लेकिन साइन। हेलो 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 आवाज बोलिए। सर, मैं रिसर्च स्कॉलर कुलभूषण चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में। सर, हमारी आरडीसी जून में हुई थी, तो उसमें हमारे टॉपिक में एक शब्द संशोधित करके लगा दिए गए, एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। सर, मैं इसका डिफरेंस समझना चाहता हूँ, तो एक ही चीज हुई। देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही हुई। अब आपको आरडीसी ने जो सुझाव दिए हैं जी, तो हम तो कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। और एवोल्यूशन और प्रोग्रेस, वैसे तो उनमें भी डिफरेंस है, लेकिन अब आरडीसी के जो सजेशंस हैं वो देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी जहां से भी आप कर रहे हैं, तो वो आपको इनकॉर्पोरेट आरडीसी के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। जी जी ताकि जो देखिए उसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सर जी, और मैं ये और सुझाव लेना चाहता हूँ कि आरडीसी के 6 महीने बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा हुई है, तो कितने बार जमा होती है 6 माही रिपोर्ट? नहीं, वो तो हर 6 महीने में होगी आपकी। नहीं तो कितने बार होगी? अभी एक बार जमा हो चुकी है। कितने बार जमा होती? जैसे कोर्स वर्क के बाद अपन को आरडीसी हुई थी, आरडीसी के बाद टॉपिक मिला, फिर इसकी 6 मंथली रिपोर्ट जमा हुई है। हाँ, अब कितने बार और हर जमा बार होगी। होगी? नहीं, हर बार 6 महीने में होगी। वैसे तो नहीं तो ऑफिशियल यूजीसी के हिसाब से पर ईयर 2 होती है, हर 6 जी मंथ में आपकी एक बार जमा होगी। अब वो जी डिपेंड करता है कि बिल्कुल। आपकी आरटीसी कब होती है। अब आरटीसी के डेट आपका लेट से हो पहले हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके कब हो रही है आरटीसी। एग्जैक्टली। बट वो अगर तो 6 महीने ऑफिशियल में देखा होगी। जाए तो पर ईयर 2 आरटीसी की रिपोर्ट सबमिट होती 2 हैं, होती है। 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट। जी जी तो ये अपने यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट से डिसाइड करें कि वो कब आरपीसी करवा रहे हैं, बिल्कुल डिपेंड उन बिल्कुल पे करता है। वो डेट वो चाहे एक्सटेंड करे चाहे लिमिट में रखें, वो हर जगह का अलग नियम है। बिल्कुल, हर जगह का मतलब अलग। ये कोर्स वर्क के बाद लगभग 1-2 साल में क्लियर होगा कि और ज्यादा टाइम भी लग सकता है? अरे सर, ये आप ये तो पर कोर्स डिपेंड वर्क तो करेगा। यूनिवर्सिटी, दैट इज डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी ना। यूनिवर्सिटी जी डिसाइड करेगी कि आपका कोर्स वर्क के बाद आपका कब सिनॉप्सिस सबमिट करवा रही है। कोर्स वर्क कुछ यूनिवर्सिटी होते 6 महीने बाद करवाती है, कुछ साल का नहीं। करवाती है, कुछ जी जी यूनिवर्सिटी तो कोर्स वर्क करवाती ही नहीं है, वो जी कोर्स वर्क के साथ में पीएचडी शुरू कर देती हैं। जी जी तो वो डिपेंड शानू करता जी, है आपके यूनिवर्सिटी कोई डिपार्टमेंट क्वेश्चन है? होता है।
ठीक है जी और सर। किसी का तानु जी कोई आप कुछ क्वेश्चन? पूछना यस। चाह रही हैं? जी सर, मेरा सवाल था आपसे सर कि मैं कल्चर कम्युनिकेशन पे काम कर रही हूँ। तो सर प्रश्नावली जब मैं तैयार कर रही हूँ तो सर उसमें कुछ दिक्कतें आती है कि किस तरीके से प्रश्नावली तैयार की जाए, कितने प्रश्न रखे जाए, तो सर कुछ दिक्कतें आती है इस तरीके से, तो कैसे इसे देखिए, निपटें? इन दिक्कतों से पार पाने के लिए ही तो जो ICSSR है या जो दूसरी एजेंसीज हैं वो आपको 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और इसके क्वेश्चन ईयर के स्पेशलिस्ट होते हैं। आप देखिए MPISSR, आप वहां जाएंगे तो प्रोफेसर यतिंदर सिंह सिसोदिया जी हैं, सिसोदिया सर, हाँ। है, तो आपको वहां स्पेशली उसी पर फोकस्ड होके वहां क्वेश्चनियर के ऊपर बहुत सारा काम करवाते हैं वो लोग, प्रैक्टिकल भी और थियोरिटिकल भी। तो इसीलिए तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत अच्छे मायने रखते हैं कि आप किस तरह से करते हैं, किस तरह के एक्सपर्ट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है। और वहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं वो लगभग जो ऑल इंडिया के जो टॉपर होते हैं, मतलब टॉपर का मतलब है जो बेस्ट होते हैं, उनको वो बुलाते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट। तो इसलिए हमको उस तरह के कुछ कोर्सेज कर लेने चाहिए। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे उनके कुछ वीडियोस, उनके सिसोदिया साहब के, तो उनको आप देखेंगे। क्वेश्चन ईयर के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक आपको बताएंगे वो बहुत सारी चीजें। या उनकी कुछ जो PPT है मेरे पास भी हैं, क्योंकि मैंने वहाँ FDC किया था बहुत पहले।